It's a story that makes headlines almost every other year. Members of Pakistan's minority Shia Hazara community persecuted in the remote Balochistan province. With a long history of being targeted by the banned radical Islamists, the helpless families of the killed are forced to bring their dead bodies on the streets and sit beside them in the freezing cold temperatures, demanding protection and justice. Even the weather is not kind to the Hazaras. Tired of being let down by government assurance for justice, the mourners are left with little option than to accept the promises yet again. The dead are eventually buried in the cold, and life rolls back to the normal. There is little space left in the Hazaras' graveyard. Terrorized and with no faith in the government, the defenseless community waits for another mayhem. The minority Shia community in Pakistan is a regular target of Sunni militant groups. The Hazaras face a double brunt of this fierce persecution. Their distinctive facial feature, a mixture of Mongolian and Central Asian ancestry, make them an easy target. ये तो एक इम्पोज्ड की हुई सूरत हाल है, प्रॉक्सी है या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें एक सिनेरियो डेवलप किया जाता है कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं. According to the Human Rights Commission of Pakistan, over 2,000 Hazaras have been killed in bomb blast and shooting in the last 2 decades. Since 2013, there has been a noted spike in these killings, and well over 700 Shia men have been murdered for their faith, and the injured are in thousands. बस वही जो पिछले 22 सालों से जो हमें टारगेट किलिंग कर रहे हैं, मेन मसला इनका यही है कि हज़ारा कम्युनिटी को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं. पिछले 22 सालों से ना हमारी कम्युनिटी में औरतें सेफ़ हैं, ना हमारी ख़वातीन सेफ़ है, और ना ही आदमियाँ सेफ़ हैं. हमारी कम्युनिटी के मर्द हजरात भी सेफ़ नहीं हैं. To make matter worse, the community is forced to live in 2 large fortified enclaves around Quetta city. With little access to the outside world, this stark human rights atrocity remains virtually hidden from the world. इस गुज़िश्ता 20 साल के हालात ने उनको आइसोलेशन में कर दिया, क्योंकि एक तरह का हर तरफ से बैरियर लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे जो हैं, जो कि माशाल्लाह एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चा है, वो अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है थ्रेट हर तरफ से लगा. बच्चों की बसों पर हमला हुआ, यूनिवर्सिटी की बसों पर हमला हुआ. हज़ारा कम्युनिटी को बहुत से मसाइल वहाँ पेश आ रहे. एक तो जान का ख़तरा, हम अपनी कम्युनिटी के अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकते. एक पिंजरे में हम कैद है. वहाँ से जब हम निकलते हैं तो हमें ये उम्मीद नहीं होती कि हम वापस भी अपने घर आएंगे या नहीं. Ever since the horrifying 2013 Alamdar Road twin blast, Imamia Medics International, one of the world's leading healthcare, humanitarian and relief organization, has been on the ground in this conflict zone, stepping in to respond to the cries of despair. हम वहाँ पे जो भी शहीद होते थे फैमिलीज़ के लोग, या ये कि जो उसमें ज़ख्मी होते थे मरीज़ जो हैं, उनको हम कराची रेफ़र कराते. Shouldering the helpless through various emergency healthcare, education and food supply campaigns, IMI has been able to raise over $150,000 for the martyred families. Support from generous donors like you have been our pillar. I was born in Quetta, Pakistan. I belong to the Hazara community. जब मैं US आई फर्दर एजुकेशन हासिल करने, तो मेरा कांटेक्ट इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ. इस दौरान IMI ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे अकोमोडेशन में आई वाज पार्ट ऑफ द नेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ IMI, जिसके तहत स्टूडेंट्स को जो है फ्री रोटेशंस,
लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, गाइडेंस, काउंसलिंग और हर किस्म की सपोर्ट फराहम होती है। और मैं इस सिलसिले में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ IMI की कि उन्होंने हमेशा हर स्टूडेंट का साथ दिया है इस मामले में, स्पेशली जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल ने ये फ़ैसला किया कि सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम से अलमदार रोड के ऊपर एक अदारा कायम किया जाए, जिसमें अलमदार रोड की आबादी और हज़ारा टाउन के रहने वाले बच्चे और बच्चियों को नर्सिंग और पैरामेडिक्स में डिप्लोमा कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ करवाए जाएँ। इस मकसद के लिए ये अदारा इंशाल्लाह जुलाई से फंक्शनल हो जाएगा और इसके ऊपर कोई 25 से 30 लाख रुपए की लागत आ रही है। पहले मरहले में इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और डिप्लोमा कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाएंगे। दूसरे मरहले में इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इसे हज़ारा टाउन में भी इस्टेब्लिश किया जाए। पहले मरहले में कोई हेल्थ केयर का इदारा कायम किया जाए, सेंटर कायम किया जाए और इसी तरह से वोकेशनल सेक्टर में, ताकि वो जो हमारे मिजरेबल लोग हैं या जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनको कोई कंटिन्यूसली इकोनॉमिक हार्डशिप से निकाला। ज़ाहिर है सेहत तो ऐसा मामला है कि जो हर दिन की ज़रूरत है। इनके इस काम की वजह से वो एक बेटर हेल्थ केयर जो आ जाता है वो प्रोवाइड होगा लोगों को। अनडाउटेडली IMI के डॉक्टर्स बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है पूरे कोयटा में फॉर द लेस प्रिविलेज्ड एंड पुअर पीपल। तालीम में उनको मदद फराहम की जाए शहीदों की फैमिलीज़ को। और जो मेडिकल के हवाले से हमारे जो चीज़ हमने देखी और जो हम सोच रहे हैं काम करने के लिए, वो ये है कि कोई मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनाया जाए। IMI ने डिसाइड किया कि 2-3 सेक्टर में हम काम करेंगे। सबसे पहले तो एक हमने जो डिसाइड किया कि वहाँ हज़ारा टाउन के बीच में एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाएं, ताकि उधर बहुत वहाँ से हमारे लोगों को यहाँ अलमदार रोड पर आना पड़ता है इस सिलसिले में ना। दूसरा हमारा ये प्रोग्राम है कि एक वोकेशनल सेंटर कायम किया जाए, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ उसमें जाके अपने एम्ब्रॉयडरी या ड्रेस मेकिंग वगैरह इस तरह से काम करें। और तीसरा जो सबसे मेन और वैल्यूबल है वो ये है कि IMI ने पहले इसका इराक़ में इसका तजुर्बा किया कि वहाँ के बच्चों को जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनको ये पैरामेडिक्स के अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाए। Touched by the measurable misery faced by the Hazaras, IMI's Canada chapter stepped in to support the orphans in getting quality education. A total of 14 school children along with 2 medical students were sponsored by IMI Canada, and it will cost $6,000 annually to support these students. However, other programs that would support widows, provide scholarship to the orphans and needy students, career guidance to the young students are also being aimed for. एक शहरी होने के नाते, एक हज़ारा कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ उसके नाते कि आप लोग सिर्फ हमारे लिए दुआएं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स है बहुत टैलेंटेड है, हज़ारा कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको जो है प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। उनको सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी पिछले 22 सालों से जो टारगेट किलिंग्स हो रही है वो डिप्रेशन में चले गए सारे। Things might seem calm at the moment, but for the Hazaras, it's the calm before the storm. Many of the over 3,000 widows and 1,000 orphans can be seen visiting the graveyard, mourning in silence, hoping that their tears are not forgotten.